میرے یہاں ڈھول صفائیہ تنورابدی رکھا سمن یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سمن جس طرح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج بہت سارے مہمان ہوں گے, بات کریں گے یہ جو آنے والے کمیون کے الیکشن ہے اور 6 سپٹمبر کی بھی بات کریں گے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ الیکشن جو آ رہے ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو سابقہ ڈپٹی میئر ہیں, موجودہ میں ڈپٹی میئر ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ میئرز ڈپٹی میئرز کیسے بنتے ہیں, یہ سیاست قانون میں جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, لوگ کس طرح کام کرتے ہیں, اور لوگ جو میٹنگز اٹینڈ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو سٹی کونسلز ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. جو سوالات تو ہم بہت سارے کرتے رہتے ہیں, خواہشات ہماری بہت ساری ہوتی ہیں, تو یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس وقت ہمارے ساتھ برانوی کمون کے ڈپٹی میئر سید اعجاز حسین بخاری صاحب موجود ہیں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں, ہر جگہ کسی سیاسی جلسہ اس میں نظر آتے ہیں, کچھ سیاسی میٹنگ اس میں نظر آتے ہیں, کوئی مذہبی جلسہ اس میں آپ کو نظر آتے ہیں, کہیں بھی کوئی شادی بیاہ ہو اس پہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ جو ایک آدمی کمیونٹی کا آدمی ہے اسی طرح وہ اپنا شیئر ڈالتا ہے, اپنی نمائندگی ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں, میں آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہوں. ہر کسی کو حق ہوتا ہے ان کے ساتھ سوالات کرے, ان سے پوچھے جی آپ کیا کر رہے ہیں. تو میری مراد ہے سید اعجاز حسین بخاری صاحب. شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب بہت شکریہ جناب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے آن لائن دیا. شاہ صاحب یہ تو بات چلتی رہے گی, میں کروں گا سوال چونکہ آپ سیاستدان ہیں, الیکشن بھی قریب آ گئے ہیں اور پھر ڈپٹی میئر بھی ہیں, آپ کی ذمہ داریاں بھی اور باقی لوگوں سے جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے. تو 6 سپٹمبر کے حوالے سے شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے جی کہ 6 سپٹمبر ہے جو ہمارے لیے ایک نہایت اہم دن ہے, چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جہاں پر ہم اور بہت سارے اپنے پروگرام کرتے ہیں, وہاں پر اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان ایام کو منانے کے, جن کی حیثیت ہماری قومی حیثیت کے جو ایام ہیں ان کو منانے میں ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے, جس پر میں سمجھتا ہوں ہم سب ذمہ دار ہیں. میں اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتا ہوں. تو یہ ایسے ایام ہیں جن کو یاد رکھنا, اور یہ ایسے وہ ایام ہیں جو ہمیں تقویت دیتے ہیں, ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ کس طرح ہماری افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے. اور اس کی ایک تازہ ترین مثال ہے جو وہ گزشتہ چند مہینے پہلے بھی ہمارے سامنے آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایام کو منانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کم از کم ان ایام کے ساتھ واقفیت ضرور. بجا فرمایا شاہ صاحب, ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں ایز اے میڈیا انفارمیشن دینے کے لیے. پھر یہ دن بھی دیکھیں نا, آپ کا بھی چھٹی کا دن ہے, ہمارا بھی چھٹی کا دن ہے, لوگ موسم انجوائے کر رہے ہیں, لوگ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے اپنے طریقے سے جو ہے مل جل کر سارے کام کرتے رہتے ہیں. شاہ صاحب آتے ہیں, اب 18 نومبر بہت قریب آ گیا ہے, اور اس کے بعد آپ بھی اخبارات کی سرخیوں کی زینت بنتے رہتے ہیں. پھر ہمارا ایک 24 گھنٹے گزٹ اخبار نکلتا ہے, حسینہ گزٹ اخبار ہوتا ہے, اس پہ بھی بہت ساری خبریں چھپتی ہیں. تو یہ جو بھی جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے آپ کے بارے میں چھپ رہا ہے, سیاسی لحاظ سے باتیں کی جا رہی ہیں, ذرا ملا جلا میرا سوال ہے, آپ اس کو جو ہے ہینڈل کر لیں. جی آپ کو حق حاصل ہے, اور آپ کی طرح ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ مجھ سے جو چاہے سوال پوچھے. اگر آپ سوال کو تھوڑا سا واضح کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی, ورنہ یہ کہ مبہم سا سوال ہے جو اس کا جواب شاہ پھر صاحب بڑا سوال لمبا یہ ہو ہے کہ جائے گا. پچھلے دنوں اخبارات میں آ رہا تھا, آپ کے بارے میں لکھا گیا, اخبارات میں لکھا جی گیا, جی اور جی جو جی باقی لوگ ہیں وہ باتیں رہتے ہیں. میں اکثر سب کو کہتا ہوں, میں نے کہا یار شاہ صاحب ہر جگہ آتے ہیں, کون سی جگہ جہاں شاہ صاحب ہمیں نظر نہیں آتے, تو آپ جی جی ڈائریکٹ ان سے سوال کر لیا کریں, ان سے پوچھا کریں کہ شاہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا کام کیا ہے, یا آپ جی کسی جی میٹنگ میں گئے ہیں, شاہ صاحب کوئی اجلاس ہوا تھا, ہم وہاں میٹنگ میں گئے تھے, آپ وہاں نظر نہیں آئے تھے کمون میں. تو اس طرح کی جی چیزیں چلتی رہتی ہیں شاہ صاحب. جی بالکل, میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں. میں ان کو باری باری دو تین ہیں جو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا, جو اخبارات میں میرا ایک انٹرویو ہے جو بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے, وہ ایسے ہے کہ وہ انٹرویو میرا ہے جو یو لینڈ پوسٹن کے ایک جرنلسٹ نے میرا انٹرویو لیا تھا, اور وہ فلسطین, غزہ اور اسرائیل کے حوالے سے تھا. اور وہ انٹرویو تو میں نے صرف یو لینڈ پوسٹن کو دیا تھا, لیکن ان سے پھر باقی جو اخبارات ہیں انہوں نے ان سے کاپی کر کے, تو انہوں نے بھی میرا وہ انٹرویو ہے جو چھاپا ہے مختلف اخبارات میں, 42 کے چزنے میں بھی آیا ہے, ایکسٹرا بلیز میں بھی آیا ہے, بلکہ پھر بعد میں وہی سوال ہے جو وہ DR1 کے پروگرام میں بھی چلا ہے, جہاں پر ہماری وزیر اعظم سے سوال پوچھا گیا ہے میرے متعلق کہ آپ کی پارٹی کا ایک ڈپٹی میئر ہے, اس نے یہ بات کہی ہے. تو
सूरत हाल ये है कि उस इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे जो सवालात, उनमें से जो 3-4 जो बुनियादी अहमियत के हामिल थे, उसमें मुझसे पूछा गया था कि जो गज़ा की सूरत हाल है, उस पर मेरा स्टांस क्या है? तो मैंने उनको जवाब में यही बताया था कि मेरा स्टांस आज कोई नया नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर चेक करें, पीछे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल भी पीछे जाएँगे, तो मेरा आपको ट्रैक रिकॉर्ड है यही बताएगा कि मैं हमेशा फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और उसकी वजह ये है कि ये इलेक्शन की वजह से नहीं है, ये इंसानियत की वजह से है। बहैसियत मुसलमान मेरा फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी इलाके में, चाहे वो फ़लस्तीन हो, वो कश्मीर हो, वो चेचनिया हो, वो यमन हो, दुनिया का कोई भी इलाका हो, जहाँ पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हों, उनकी इमलाक को ढाया जा रहा हो, उन पर ज़िंदगी जो वो मुश्किल तरीन कर दी जाए। अब जो गज़ा की सूरत हाल है, दुनिया की सबसे ओपन एयर जेल है जो, वो गज़ा है। और अगर हम इसके पीछे जाएँ, जो इसके मुहर्रिकात हैं कि हमास ने क्यों हमला किया था इसराइल के ऊपर, तो उसकी वजह ये है कि वो तंग आ चुके थे। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को, बाकी दुनिया को अपने जो मज़ालिम उन पर हो रहे थे, तो उसकी तरफ मुतवज्जे करें। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं उनकी हमायत नहीं कर रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अक़वाम आलम उसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान हुकूमतें हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली और उनकी मोहब्बत जो फ़लस्तीनियों से ज़्यादा उनकी इसराइल से मोहब्बत है। कि चूँकि जिसकी वजह से उन्होंने, और कुछ डर भी है, खाली मोहब्बत नहीं है, उनको जो बड़ी ताकतें हैं, उनकी तरफ से डर भी है, चूँकि डिक्टेशन है जो हमेशा बड़े घर से आती है। तो हमारे जो इस्लामी 57 ममालिक हैं, उनका रवैया इंतहाई शर्मनाक रहा है। और बिलख़ुसूस जो अरब ममालिक, जिनकी ज़ुबान एक है, जिनकी आपस में मुमासलत बहुत ज़्यादा है, जो करीब तरीन हैं, जो वो मदद कर सकते से, उनमें से भी किसी ने कोई खातिर-ख़्वाह मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। कम अज़ कम अपने सिफारती ताल्लुकात हैं जो, उनको बुरुए कार लाते हुए वो अगर प्रेशर डालते, तो मुमकिन है कि जितना इस्तेहसाल गज़ा का इस वक़्त, जो वहाँ की सूरत-हाल, जो डेमोग्राफ़ी, उनकी जो बिल्डिंग्स का अगर आप हिसाब लगाएँ, तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% गज़ा को बर्बाद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स ही ख़त्म हो गई। अब जो मौजूदा सूरत-हाल है, उसमें जिसे हम डेनिश में हुंगर न्यू कहते हैं, कि जो भूखापन है जो, इस वक़्त ग़ज़ाई किल्लत की वजह से, आज मैं कहीं पढ़ रहा था 384 लोग सिर्फ खाना ना मिलने की वजह से मर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए तमाम अक़वाम आलम को, मुसलमान लीडरों को, और जो जितने भी यूरोपियन लोग, जो यूरोपियन ममालिक जो डेमोक्रेसी के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बाइसे ज़िल्लत है उन लोगों के लिए कि जिनकी आँखों के सामने अगर 384 लोग सिर्फ भूख की वजह से मर जाएँ। यहाँ पर तो हम कहते हैं जी कि कुत्ता भी यहाँ पर अगर मर जाए, तो इन कौमों के दिल में बड़ा रहम होता है। उसको उठा के सड़क से बड़ी इज़्ज़त के साथ उसको किसी और जगह पे रखते हैं। कोई जानवर ज़ख्मी हो जाए, उसे उठाकर अस्पतालों में पहुँचाया जाता है। लेकिन जहाँ पर ज़िंदा इंसान, और उनमें जिनमें औरतें और बच्चे भी हैं, और बूढ़े लोग भी हैं, उनको गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, और किसी की गैरत ये गवारा नहीं करती कि कोई लफ्ज़ है जो वो मुँह से निकाले। तो मैंने बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, मैंने अपनी पार्टी को ललकारा है, मैंने अपनी हुकूमत को ललकारा है, मैंने अपना स्टांस दिया है कि मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और मेरा जो सबसे, जिस बात पर ज़्यादा हुकूमत की तरफ से भी, मेरी अपनी पार्टी की तरफ से मुझ पर तनकीद की गई, और बल्कि मुझे प्रेशर में लाने की कोशिश की गई, वो ये था कि मैंने कहा था उस इंटरव्यू में कि वी आर मिल्स-गुल्टी, कि हम इस जुर्म में, हम शरीके जुर्म हैं, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है। तो मैंने ये भी उसमें कहा था कि हमारी हुकूमत ने, और बिलख़ुसूस मेरी पार्टी ने, वो कुछ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, ताकि ये फ़ौल-ए-ख़ाब है जो जेनोसाइड हो रही है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इसे रोका जाता। और मेरी पार्टी की तरफ से पहले तो उसपे जी मुझे मुझे फ़ोन आया जी कि ये हम नहीं इसको डिक्लेयर कर सकते कि ये फ़ौल-ए-ख़ाब है या नहीं, ये अदालतों का काम है।
मैंने कहा अगर आपको 60-70 हज़ार लोगों का मरना उनका कत्ले आम होना ये फौल के ख्वाब नहीं है, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी डेफिनेशन होगी जिससे कहा जा सके कि फौल के ख्वाब है जो ये वकू पजीर हो रहा है, वाक़या हो रहा है। तो मेरी अपनी पार्टी को मैंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। मैं समझता हूँ कि मैं हक बजानिब हूँ, और बल्कि मैंने यहाँ तक कहा है कि मुझे शर्म आती है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ जिसने ये कत्लेआम रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे पार्टी की तरफ से भी बड़ा प्रेशर डाला गया, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा जी कि मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूँ। जो मैंने कहा था, मैं आज भी उस पे कायम हूँ, और इंशाअल्लाह मैं आइंदा भी इस पे कायम रहूँगा। ये कत्लेआम है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। मेरी हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम जिस तरह की सैंक्शंस उन्होंने यूक्रेन पर हमला है जो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। जब जब रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हमारी हुकूमतों का स्टांस कुछ और होता है। लेकिन जब इसराइल फ़लस्तीन पर और गज़ा पर हमला करता है, तो फिर हम कहते हैं कि वो अपने सेल्फ-उस्वा में, वो अपने अपने दिफ़ा में कर रहा है। तो ये हमारी जो दोहरा मायार है हमारी हुकूमतों का, मैं इसके खिलाफ हूँ, और मैं इसको पहले भी इसको कंडेम करता रहा हूँ, इसकी मज़म्मत करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। मुझे पार्टी से अगर निकाला जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने स्टांस के साथ खड़ा हूँ, और इंशाअल्लाह मैं अपने आखिरी सांस तक इस स्टांस के साथ खड़ा होऊंगा कि जो कुछ फलस्तीन में जुल्म हो रहा है इसको बंद होना चाहिए। फलस्तीनियों को हक हासिल होना चाहिए, उनकी स्टेट को कबूल किया जाना चाहिए। जिस तरह अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो उन्होंने उनमें से काफी ममालिक हैं जो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो फलस्तीन को बतौर स्टेट कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा अपनी हुकूमत से, डेनमार्क की हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि वो भी फ़लस्तीन को बहैसियत एक स्टेट तस्लीम करें, और फौरी तौर पर इस वक़्त जो मामलात चल रहे हैं वहाँ पर उनको ख़त्म करवाने के लिए, उस ज़ुल्म को बंद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। चूँकि इस वक़्त डेनमार्क है जो वो यूरोपियन यूनियन का इस वक़्त उनके पास उनकी लिल से है जो अम, वो डेनमार्क के पास है। तो डेनमार्क को अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए, और ये जो ज़ुल्म की अंधेरी रात उन्होंने मचा रखी है, इस पर उनको सैंक्शंस उनके खिलाफ होनी चाहिए, उनके साथ बाइकआउट करना चाहिए। चाहे जाए कि डेनमार्क है जो वो फ़लस्तीनी अवाम की मदद करने की बजाय इसराइल को असला फराहम करे, उन्हें नकद रकम अदा करे, या उन्हें बिज़नेस दे। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो इंसानियत के असूलों के खिलाफ है, और एफएन के चार्टर के खिलाफ हैं, और जितनी इंसानी तंजीमात है इंसानी हकूक की, अब तो सब ने बोलना शुरू कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ मेरा हक था, जो मैंने अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये बयान दिया है, और मैं उस पर कायम हूँ। और उसका मैं समझता हूँ ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे बोलने के बाद फिर बाकी लोगों के भी मैंने सुने हैं, उन्होंने भी बयानात हैं जो वो इस सूरत हाल के मुताबिक, यानी उन्होंने भी ये कहा है कि हमारी हुकूमत को कुछ करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। ये भी किसी ने ये कहा है जी कि ये बड़े सुस्त रहे हैं कुछ करने में। अब यकीनन हमारी हुकूमत की जानिब से थोड़ी-सी डायरेक्शन चेंज हुई है कि अब उन्होंने कहना शुरू किया है कि ये जो हालात हैं ये वाक़ई इस तरह के, और ख़ासकर जो जो खाने-पीने का फुक़दान है वहाँ पर, जो भूख का इस वक़्त सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि वहाँ पर ना मेडिसिन है, ना खाना है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ अक़वाम आलम को चाहिए, यूएन को चाहिए, इस्लामी इत्तेहाद की तंज़ीम है जो उसको चाहिए कि इन 2 चीज़ों पर फ़ौरी तौर पर इसके लिए लाए-अमल तैयार किया जाए कि लोगों को भूख से मरने से कैसे बचाया जा सकता है, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात कैसे दी जा सकती हैं। चूँकि जो टेररिस्ट मुल्क है, इसराइल, वो ना तो अस्पतालों को छोड़ रहा है, ना स्कूलों को छोड़ रहा है, ना जर्नलिस्ट को छोड़ रहा है। आप देखते हैं कि रोज़ाना अखबार में किसी न किसी जर्नलिस्ट के कत्ल की खबर आ जाती है कि उसको मार दिया गया है, किसी स्नाइपर ने गोली उसे मार दी है, या किसी अस्पताल पर बम्बार्डमेंट हो रही है, या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन उसको बर्बाद किया जा रहा है, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और मैंने आज ये भी पढ़ा कि वहाँ पर पम्फलेट गिराए जा रहे हैं गज़ा में कि इसको छोड़कर आप यहाँ से निकल जाएँ। अब जिनका मुल्क है, अब उनको उनके मुल्क से जब निकाला जाएगा, तो फिर उस पर खामोश रहना जो मैं समझता हूँ ये इंसानियत की भी तज़लील है, और ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है।
تو मैं समझता हूँ मैंने अपना हक अदा किया है कि मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, और मैं हर किस्म के नताइज के लिए, हर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मेरे खिलाफ मेरी पार्टी कोई एक्शन लेती है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। शाह साहब, आपने बड़ा अच्छा किया, तफसील से बताया, जो लोगों के जहन में सवालात थे उस सारे जवाबात भी आ गए। लेकिन शाह साहब, आप आम आदमी नहीं हैं, एक बड़ी हुकूमती जमात के आप जो हैं वो डिप्टी मेयर हैं, और आपके जो कोलीग हैं, जो आपके मेयर हैं, जो आपके वोटर सपोर्टर हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। जहाँ तक हमारी हुकूमती पार्टी का ताल्लुक है, कुछ लोग हैं जो दरपर्दा, चूँकि हुकूमती पॉलिसी है जो, एक तो ये है कि चूँकि जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं एक कम्यून में मैं नुमाइंदा हूँ। अब जो कम्यून होता है, उसका बराह रास्त जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उस पर कोई अमल दखल नहीं होता। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमेशा फ़ॉल के छिंग में बनती है, पार्लियामेंट में बनती है। हमारा कुमून की जानिब से, चूँकि कुमून का डोमेन मुख्तलिफ है, जैसा कि आप जानते हैं और आपके सामीन भी जानते हैं कि डेनमार्क में 3 तरह के इंतखाबात हैं, 3 हिस्से हैं। एक बल्दियाती इंतखाबात हैं जिसमें कुमून है, उसके बाद रीजन है जिस तरह की हमारी सूबाई असेंबली होती है, और उनके कम्यून के हिस्से में जो है वो स्कूल्स हैं, प्लाई एम हैं, हमारी लाइब्रेरियाँ हैं, हमारे जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके ज़िम्मे में आता है। हमारे हमारा जो डोमेन है अ, उसमें ना तो जो हमारी ये जो पॉलिसीज़ हैं गैर मुल्कियों के साथ, या जो हमारी फॉरेन अफेयर है, वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उसमें हमारी तरफ से डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और दूसरा जो रीजन है, उसके पास चूँकि कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, उनका सिस्टम है जो उसकी देखभाल उन्होंने करनी होती है, और जो जितनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं, वो ज़ाहिर है सारी हुकूमत में बनती हैं। लेकिन बहैसियत एक पार्टी मेंबर मैंने अपना हक अदा किया, और जहाँ तक मैं जानता हूँ चंद एक और भी मेरे साथ ऐसे लोग हैं मेरी अपनी पार्टी के, जो समझते हैं कि हमारी हुकूमत ने इस सिलसिले में तसाहुल बरता है, कमज़ोरी दिखाई है, इनको ज़्यादा कुछ करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता चूँकि अब ये इस बात की अवेयरनेस हो रही है, तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़्यादा लोग हैं जो इस पर बोलना शुरू हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी गुज़ारिश की कि हमारी हुकूमत ने, मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत का स्टांस थोड़ा-सा पहले की निस्बत अब इंसानियत की तरफ थोड़ा-सा चेंज हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे इस आवाज़ में, और ये आवाज़ तवाना होगी, और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत को कुछ न कुछ इस सिलसिले में करना पड़ेगा। बिल्कुल बजा फरमाया, चूँकि डेनमार्क दुनिया में जो है इंसानियत के लिहाज से पहचाना जाता है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से पहचाना जाता है। जब आप जैसे लोग इस तरह की तरफ निशानदेही करेंगे तो डेफिनेट हुकूमतें सोचती हैं, पॉलिसी अपनी बनाती हैं, तब्दील भी करती रहती हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो शाह साहब, जब आप, हमें भी अक्सर लोग मिलते हैं तो मुझे स्पेशली किसी ने सवाल किया कि राय साहब, आप शाह साहब से पूछें कि आपने इतने सारे टेन्योर में किया क्या है। तो मैंने कहा यार, ये तो शाह साहब ने किया है, तो तीसरी बार मेंबर बने थे, कुछ किया था तो मेंबर बने। लोगों ने उनको क्यों वोट्स दिए हैं? अगर वो ना करते तो लोग उनको वोट ना देते। तो शाह साहब, मैं फिर ये आपसे सवाल करता हूँ कि आपने क्या क्या किया या क्या नहीं किया है जो अपनी कम्युनिटी के लिए, जहाँ से आप मेंबर बने हैं, आपने क्या क्या गलती की है? जी, बहुत शुक्रिया रईस साहब। ये मैं समझता हूँ बहुत रेलेवेंट सवाल है, और ये हर बंदे को हक हासिल है कि वो मुझसे पूछे कि मैं 12 साल कम्यून का मेंबर रहा हूँ तो मैंने क्या किया है। मैं इसका जवाब बिल्कुल पहले भी एक आध मर्तबा मैं इस पे ये गुज़ारिश कर चुका हूँ। प्राइवेट महफ़िल, उसके आदाब कुछ और होते हैं, वहाँ पर कुछ गुफ्तगू है जो वो खुल के की जा सकती है। बाज़ ऐसे मसाइल होते हैं, ऐसी गुफ्तगू होती है जो पब्लिकली करना शायद ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। लेकिन चूँकि आपने ये सवाल किया है, तो मैं इसको इख्तिसार के साथ, मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये है कि मैं इख्तिसार के साथ उसकी तरफ इजमालन ज़रूर बताता जाऊँगा कि मैंने अपने जो मेरा पीरियड है 12 साल, इसमें मैंने क्या-क्या काम किए। तो सबसे पहले तो आपने अपने अपने सवाल में ही आपने खुद ही लोगों को बता दिया, जवाब दे दिया कि अगर एक बंदा 3 मर्तबा कामयाब हुआ है, तो इसकी वजह ये है कि उस पर लोगों का एतमाद था, तो इस वजह से 3 मर्तबा कामयाब हुआ है, वरना 1 मर्तबा के बाद अगर किसी को किसी कैंडिडेट पर एतमाद ना रहे, तो दूसरी मर्तबा उसको वोट नहीं दिए जाते। तो बहरहाल मैं ये बताना ज़रूरी समझूँगा आपके सामईन को कि मैंने एक मर्तबा पहले भी इंटरव्यू में इस बात का ज़िक्र किया था कि हमारी जो ब्रंटबी में जो हमारी पाक कल्चर सेंटर के नाम से जो तंज़ीम है, इसमें
हमारे बाकी साथी भी सारे इसमें शामिल थे जिन्होंने इसको बनाया, लेकिन मास्टर याकूब साहब इसके रूए रवां थे और वो पहले सदर भी थे इसके, और उन्होंने इस पर काफी काम भी किया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, और चूंकि वो भी सोशल डेमोक्रेट के मेंबर थे, तो उस हवाले से उन्होंने उस वक्त के हमारी जो गोमेस्ता के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट करके तो हम हमारे लिए यहाँ पर एक स्कूल में, लांगविया स्कूल में एक कमरे का भी एहतमाम किया था। और ये मैं समझता हूँ ये मास्टर याकूब साहब की अचीवमेंट थी, और उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ तंजीमात में तब्दीलियां आती हैं। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ एक मर्तबा कि वहां पर हमारी शिकायत हो गई कि मुसलमानों ने ये उसको मस्जिद बनाया हुआ है। और ये बात वाकई दुरुस्त है कि वहां पर हम लोग नमाज पढ़ा करते थे और बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी होती थी, जो मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ वहां पर। ज़िमनन ये भी अर्ज कर दूं कि मैं अल्लाह के फजलो करम और उसके एहसान के साथ मुझे 30 साल हो गए हैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हुए। मिनाजुल कुरान से मेरे इस सफ़र का आगाज़ हुआ था 1995 में। तो फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुझे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने का मौका मिला, और फिर 7-8 साल मैंने एल्बर्ट स्लोन में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया। और उसके बाद पिछले तकरीबन 12-13 साल से मैं यहाँ पर ब्रॉडबी में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता रहा हूँ। तो वो लोखेल जिसमें हम बच्चों की क्लास लिया करते थे, उसके मुतालिक डेंसफोल्ड के पार्टी के एक शख्स थे, उन्होंने शिकायत की कमून को कि इस जगह को इन्होंने मस्जिद बनाया हुआ और यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो मुझे, चूंकि मैं उस वक्त मेंबर भी था, हमारे मरहूम उस वक्त के जो मेयर थे इब्न चैप, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे पूछा कि ये मसला, इस तरह की शिकायत आई है। तो फिर मैंने उनके साथ मुशावरत करके, तो मैं समझता हूँ उस बंदे का एहसान है हम पर कि उसने खुद ही मुझे ये रास्ता बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की, तो हमारे पास अल्लाह के फजल करम से हमने उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो वो बनवा लिया कमून से, कि हम इस जगह को किराए पर ले रहे हैं। तो हमने वो जगह किराए पर ले ली कमून से। तो उस तरीके से जब हम किराया अदा करते हैं किसी चीज का, तो फिर हम वहां पर अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल है जो वो कर सकते हैं। उससे पहले हमारे पास वो कमून की जानिब से बतौर फ़ोइनिंग मुफ्त अवेलेबल थी। लेकिन जब से मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था एक शैफ मरहूम के साथ, और उस वक्त उसने मुझसे पूछा था कि वो क्या मैं अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहता हूँ। तो चूंकि हमारे सदर उस वक्त मास्टर याकूब, समझता हूँ कि ज्यादा मुनासिब है कि मास्टर याकूब साहब के नाम के ऊपर बहैसियत सदर उनके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट है जो वो बनाया जाए। तो सबसे पहला तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमसे, अगर वो हम कॉन्ट्रैक्ट ना बनवाते तो चूंकि हमारी शिकायत हो चुकी थी, तो वो जगह हमसे वापस ली जा सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की गवाही मास्टर याकूब साहब भी देंगे, उनके इल्म में है ये सारी बात, कि हमने उस जगह को फिर किराए पर ले लिया था, जो आज तक वो किराए पर चल रही है, हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा जो हमारा कब्रिस्तान है ब्रांडी में, आपके इल्म में है कि वहां पर जो बिल्डिंग बनी हुई है, जहां पर उनके दफ्तर भी है, वहां पर उनकी जो चीजें हैं, वो मशीनें वगैरह भी पड़ी होती हैं। कमून उसकी इजाजत नहीं दे रहा था किसी वजह से। तो फिर जो कब्रिस्तान की तंजीम है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि हमारा ये मसला है तो हमारी मदद की जाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कमून के जो हमारे फवेल्टनिंग है, जो चिकनी को मिलियो फवेल्टनिंग है, उनके साथ रब्ता करके उनके डायरेक्टर के साथ रब्ता किया। फिर मैंने बोमेस्ता को रिक्वेस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इजाज़त है जो वो यकीनन उनको मिल तो जाना थी, लेकिन ये है कि वो किसी किसी वजह से ताख़ीर का बाइस बन रही थी, उनको इजाज़त मिल नहीं रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मैंने उसके लिए कोशिश की थी, और उसकी जो इजाज़त है, जो बिल्डिंग आज भी मौजूद है, उसकी इजाज़त लेने में मेरा किरदार था। मैंने कोशिश की थी, तो उनको उसकी इजाज़त मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अलावा आ जाएँ जी अपने ब्रांडबी के मसाइल में। चूँकि मैंने पहले भी गुज़ारिश की कि चूँकि मामलात कुछ हैं जो मसाजिद से मुतल्लिक़ा हैं, और मैंने जो कुछ मसाजिद के लिए किया है, मैं उससे किसी से कोई उसका मुआवज़ा तलब नहीं करता, कोई मुझे उसकी एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, किसी से अजर नहीं चाहिए। मैं उसका अजर सिर्फ़ अल्लाह से चाहता हूँ, और मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुछ किया है, मैं उसको इसलिए हाइलाइट नहीं करना चाहता था। मैंने आज दिन तक इस वजह से अपना मुँह ख़ामोश रखा है कि मैं किसी को क्यों बताऊँ कि मैंने मस्जिद के लिए क्या किया है। बहुत सारे मुझे मुझे मेरे सुनने में भी ये भी आया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, जो इशारा कीता कि मस्जिद वास्ते, मस्जिद के लिए क्या किया है।
तो शायद वो खुद जानते बूझते हुए भी ये सवाल करते हैं, हालांकि उनके इल्म में है कि मैंने मस्जिद के लिए क्या किया है। सबसे पहली बात कि 7 साल मैंने मस्जिद के लिए बगैर तनख्वाह के इमामत की है। ये मैं समझता हूँ कि मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर की थी, इसलिए मैंने कभी इसका कभी रिवार्ड लेने की कोशिश नहीं की, अवार्ड लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन 7 साल मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए बगैर तनख्वाह के वॉलंटरीली मैंने ब्रॉडबी मस्जिद में इमामत की है। अब इसके बाद आगे आ जाएँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि मेरे कहने के ऊपर मैंने उनको ब्रॉडबी मस्जिद जो हमारी तंज़ीम है, उसके लिए मैंने उनकी मेंबरशिप के लिए मेरे ऐलान पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमने आपके कहने पर हम मेंबर बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के एहसान से है मस्जिद के लिए, इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान बंद रखी है, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन बहुत सारे मेंबरान मस्जिद के ऐसे हैं जो जिनको मेरी मोटिवेशन की वजह से जो मस्जिद के मेंबरान बने, और ये भी मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, किसी बंदे से मुझे इसका कोई अजर नहीं चाहिए। तीसरी चीज़, इस मस्जिद की तामीर के लिए मेरा एक कंट्रीब्यूशन है। इसकी जो फंड रेजिंग होती रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने मुझ पर एतबार किया, ज़ाती तौर पर मेरे घर में आके मुझे पैसे दिए कि ये पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम आगे मस्जिद को दे देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फंड रेजिंग होती रही है, चूँकि मैं उस वक़्त इमामत मैं करता था वहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने मुझ पर एतमाद किया है, दिए अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन ये है कि मेरे कहने के ऊपर, मेरे ऐलान के ऊपर लोगों ने बहुत बड़े-बड़े ताउन किए, लोगों ने बहुत बहुत ख़तीर रकम है जो दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वाहिद मस्जिद है जिसको हमने कैश पर खरीदा था, हमारी मस्जिद पर कोई कर्जा नहीं। तो ये वो बातें हैं जो मैं अमूमन छुपाया करता हूँ, कभी नहीं बताता, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि ये मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था। किसी बंदे से मुझे कोई इसके लिए कुछ सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए, ना किसी इंतज़ामिया से चाहिए, ना किसी और से चाहिए कि वो मुझे एप्रिशिएट करें कि मैंने ये काम किया। मैंने जो किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया। इसके अलावा जो हमारे सामने तुर्की मस्जिद है, उनके कुछ मसाइल थे, उनकी मैंने मदद की है। फिर वही बात कि मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन चूँकि आपने सवाल किया और मुझे मोहतरम मुजीब कुरैशी साहब ने बिलख़ुसूस मुझे कहा था कि ये चीज़ें हैं जो ये लोगों को बतानी चाहिए, कि लोग पूछते हैं कि इसने क्या किया है। तो जो हमारी तुर्की मस्जिद है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल वहाँ पर भी खुतबा पढ़ने का मौका मिला है, हमारी अपनी मस्जिद बनने से पहले-पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2-3 ऐसे मसाइल थे जो मैंने उनकी मदद की है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान मैंने एक मस्जिद की, एक हमारी 2 मसाजिद है, मैंने दोनों की मदद की है अपने मकदूर भर जो जो मेरी कैपेसिटी में था। अब हमारी जो तुर्की मस्जिद है, तुर्की तंज़ीम है, उन्होंने एक विला जो हमारे कोने पर है, वो खरीदा है ताकि उसको भी अपने मस्जिद के प्रोजेक्ट में शामिल कर सकें। लेकिन चूँकि वो बिल्डिंग है जो, वो सिर्फ़ बिपोल से के लिए, चूँकि लोकेल प्लान के मुताबिक वो सिर्फ़ रिहाइश के लिए थी, तो उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम्यून के साथ बात करके और उनकी मुआवनत करके अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने उनको 3 साल की डिस्पेंसेशन लेके दी है, कि वो 3 साल के लिए उस बिल्डिंग को जो फ़ाइनिंग साहबाइट है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वहाँ पर तालीम और तरबियत का निज़ाम है जो, वो किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मस्जिद के हवाले से एक खिदमत ये भी है कि मैंने उनके साथ ये तामुन करके उनको वो जगह की डिस्पेंसेशन लेके दी है। उसके बाद जो तुर्की मस्जिद है, उनके बैक साइड के ऊपर जहाँ पर ग्रीन एरिया है, उसकी तरफ उनका ख़्याल था जी कि हम जहाँ पर प्रोग्राम करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है अपना सामान लेकर बाहर जाना। तो कुमून से उन्होंने ये कहा कि मैं उनकी मदद करूँ कि उनको वहाँ से रास्ता निकलवा के दिया जाए। तो जो तुर्की मस्जिद है उसके अंदर से बाहर जाने के लिए वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेल्डिंग के साथ बात करके तो उनको वहाँ पर दरवाज़ा लगाने की इजाज़त लेके दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका दरवाज़ा है, वो उनको वहाँ से जाने के लिए ग्रास प्लेन पे जब वो अपने प्रोग्राम करते हैं समर फेस्ट वगैरह, तो उनके लिए आसानी होती है वहाँ पर अपनी सामान को लेके जाने और आने की। इसके अलावा अब उनका जो एक और प्रोजेक्ट है, वो जो मस्जिद के और उस विला के दरमियान जो कमून की जगह है, वो खरीदना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे वादा किया है कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे तौफ़ीक दी, तो मैं इंशाअल्लाह जितनी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, मैं इंशाअल्लाह उनके साथ ज़रूर शामिल हाल रहूँगा।
इसके अलावा भी कुछ चंद और बातें हैं जो मैं मुनासिब नहीं समझता कि जिनको ऑन एयर, चूँकि वो इंतहाई मस्जिद से मुताल्लिक़ हैं, तो मैं उनको मुनासिब नहीं समझता कि उनका इज़हार किया जाए। बहरहाल इसके बावजूद अगर किसी बंदे को उनकी तफ़सीलात भी चाहिए हों, तो मुझसे मिलकर उनकी तफ़सीलात अगर वो पूछे तो मैं उनको यकीनन बताने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा राय साहब, हमारे आपने सुन रखा है कि हमारा जो ब्रंडबी वाला कब्रिस्तान है, वहाँ पर पानी के मसाइल हैं कि चूँकि वहाँ पर मोटरवे बनने के साथ वहाँ पर एक आगे बंध बाँधा गया था, जिसकी वजह से कब्रिस्तान के नीचे जो पानी है, जिसे ऊना वेंसकोन कहते हैं, जो ज़ेर ज़मीन पानी है, उसकी सतह बुलंद हो गई और बाज़ औक़ात जब कब्रें खोदी जाती हैं, तो नीचे से पानी आता है। उस सिलसिले में उनकी जो तंज़ीम है, उन्होंने मुझसे राब्ता किया था। मैं उनके वहाँ गया था, वहाँ पर उन्होंने मुझे वो सूरत-ए-हाल सारी दिखाई। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो एक मीटिंग है, यकम जुलाई को मैंने उनकी एक मीटिंग करवाई थी कमून के साथ, जिसमें उसके हल के लिए जो तजावीज़ हैं अ, उस पर गौर किया गया था और इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर में दोबारा उनकी मीटिंग है जो करवाई जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो वो इंशाअल्लाह किए जाएँगे, उस पर गौर किया जाएगा कि कौन-सा तरीका है जो वो काबिल अमल है और सस्ता भी है। क्योंकि उसके 2-3 जो ऑप्शंस ज़ेर गौर आए थे, उसमें एक तो ये था कि अगर ऊपर मज़ीद मिट्टी डाल दी जाए, मिट्टी की तह ऊपर डाली जाए, जो खाली जगह है कि उसको आधा मीटर से लेकर 1 मीटर तक ऊँचा किया जाए, तो ज़ाहिर है फिर कब्र की जो डेप्थ है, उसकी गहराई है, वो भी ऊपर आएगी, तो इस तरह पानी से बचा जा सक दूसरा ऑप्शन ये था कि वहाँ पर बोरिंग करके तो वहाँ से पानी को ड्रेन करके तो उसको बाहर निकाला जाए। अब मसला ये है कि वहाँ से जो पानी ड्रेन होगा वो चूँकि कब्रिस्तान का पानी है, तो उसको आम जगह पर खुली जगह पर उसको फेंका नहीं जा सकता, उस पानी को छोड़ा नहीं जा सकता। तो कुमून के साथ इस पे भी बात हुई थी, तो उन्होंने इसका तरीकाकार बताया था कि वो पानी है जो जो पानी साफ़ करने वाली फ़र्म है, होफोआ, जिसके पास हमारा बाकी पानी भी जाता है, जो उसको साफ़ करके फिर उसको समुद्र में छोड़ते हैं। तो उस पानी को शायद हुआ के साथ हमें मिल के तो उसको वहाँ उनके पास भेजना पड़ेगा ताकि वो उसको साफ करके समुद्र में छोड़ सकें। तो इंशाअल्लाह एक ये मेरा जो प्रोजेक्ट है जिस पे काम जारी है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं उसमें उनकी जितनी मुआवनत मुझसे जो मैं मदद कर सकता हूँ, वो मैं इंशाअल्लाह कर रहा हूँ और आइंदा भी करूँगा। तो ये चंद एक जो काम आज से पहले मैं कर चुका हूँ, अ, उनकी मुख्तसर मैंने तफ़सील में जाए बगैर मैंने उनकी तरफ इशारा कर दिया है। मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि आकिल राह इशारा काफ़ी वाहिद कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके सामईन चूँकि बड़े समझदार हैं, अक्ल व शऊर वाले लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि बाज़ चीज़ें हैं जो वो ऐसी हो सकती हैं जो बाद में मसाजिद के लिए शायद कोई ज़ेर अताब ना आए, मसाजिद का इश्यू है जो, तो इस वजह से मैंने उनकी तफ़सील जो है उसको नहीं बयान किया। मैं शाह साहब उम्मीद बहुत करता हूँ अच्छा कि किया, मेरा आपने एहतियात की है, आपने एहतियात से जवाबात दिए। तो बाकी शाह साहब जो कुछ आपने काम किया या कि हेल्प की वो तो कानून कायदे के अंदर हेल्प होती है, आउट ऑफ वे तो हेल्प हो ही नहीं सकती। हर चीज़ कानून कायदे के साथ तय की जाती है, इजाज़तें कानून देता है, बंदा तो दे नहीं बेशक, सकता, सिस्टम देता है, सिस्टम से चीज़ें चलती हैं। लेकिन शाह साहब बिल्कुल ऐसा आपके ही। बारे में तक अगली दफ़ा जो आप इतने वोट लेंगे कि मेयर से भी उस तरफ भी इशारे चल रहे थे, लेकिन क्या ये पर्सनालिटी क्लैश आ गया आपके जो ज़ाहिर है कोई बंदा किसी को मना नहीं करता जितने मर्ज़ी कैंडिडेट बन जाए, और आप भी मना नहीं करते, आप भी कहते हैं जितने मर्ज़ी आ जाए। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ टारगेट्स जो हैं वो इसी तरह लिए जाते हैं, यहाँ वोट की पावर है, जिसके पास वोट होते हैं उसकी बात को सुना जाता है। तो कहीं ये चीज़ें जो आपके वोट बैंक को भी, जो है आपका बैंक को भी डैमेज कर सकती हैं। जी, रईस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, चूँकि ये जमहूरी मुल्क है, हर बंदे को इख्तियार हासिल है कि वो चूँकि कानूनी तौर पे जिस बंदे की उम्र 18 साल है और उसको डेनमार्क में रहते हुए 4 साल हो गए हैं, तो वो वोट डाल भी सकता है और जो बंदा वोट डाल सकता है, वो कैंडिडेट भी हो सकता है। तो मैं हमेशा से ऐसे रहा है कि तकरीबन 60-70 लोग हैं जो वो कैंडिडेट होते हैं हमेशा मुख्तलिफ पार्टी पार्टी की तरफ से 18-20 लोग हैं जो वो हमेशा कैंडिडेट होते हैं। तो बाकी पार्टियां जो वो भी अपने कैंडिडेट्स खड़ा करती हैं। आपने दुरुस्त इशारा किया है इस जानिब के, ज़ाहिर है वोट हमारा जो वोट बैंक है
वो जब एक से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो वो तकसीम हो जाएगा। तो जब वोट बैंक तकसीम होगा तो उसका अल्टीमेटली उसका नुकसान है जो वो होगा। उसकी मिसाल ये ले लें कि पहले पिछले 3 मरतबा में अकेला पाकिस्तानी कैंडिडेट था। अब ये है कि इस बार हम 3 पाकिस्तानी कैंडिडेट हैं। हम 2 कैंडिडेट तो बल्कि सोशल डेमोक्रेट की तरफ से हैं, एक मैं हूँ, एक अदील अख्तर हैं, वो भी मेरी पार्टी से हैं, सोशल डेमोक्रेट से हैं। और हमारे तीसरे कैंडिडेट हैं जो सैयद इरफान गिलानी साहब, वो रेडिकल वेंस्टा की तरफ से कैंडिडेट हैं। तो इस दफा हम 3 कैंडिडेट हैं। यकीनन जो हमारा हल्का अहबाब है वो हम तीनों का एक ही है। जो लोग वही लोग जो पहले मुझे वोट देते थे, अब उन्होंने ये फैसला करना है कि हम तीनों में से किसको वोट देंगे। तो हर बंदे को हक हासिल है, जिस तरह हर बंदे को हक हासिल है खड़ा होने का, इसी तरह हर बंदे को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के बंदे को कैंडिडेट दे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जानबूझकर किसी की मुखालफत इस वजह से की जाए कि फलां बंदा ना बन सके, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है। और ये इस तरह के मामलात हैं जो नहीं होने चाहिए। कि चूंकि हमारा बदकिस्मती से हमारा शियार है, जो हमारा तरीकाकार है कि हम किसी का हाथ पकड़ने की बजाय उसकी टांग पकड़ने को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात मुनासिब नहीं है। लेकिन हर बंदे को हक हासिल है, जिसका जी चाहे वो खड़ा हो जाए। और वोटर्स को हक हासिल है कि वो जिसको बेहतर समझे। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब वोट दिया जाता है तो वोट को हम कहते हैं जी कि ये बंदे के पास अमानत, और अमानत हमेशा बंदा उस बंदे को देता है जो उसका हकदार होता है। बल्कि कुरान पाक में इसका हुक्म मौजूद है कि वाइन तउद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानत उसके सुपुर्द करो जो उसका हकदार है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वोटर्स हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सियाने हैं, उनको पता है कि अहलियत किस में है, और जिसमें वो अहलियत समझते हैं। मैं हरगिज नहीं समझता कि सारे सारे जो ब्रांडी के तमाम लोग हैं वो मुझे ही अहल समझते हूँ। मुझसे किसी और को, दूसरे जो मेरे साथी कैंडिडेट्स हैं उनको हो सकता है मुझसे ज्यादा अहल समझते हैं। तो ये हर बंदे की अपनी सवाबदीद है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि बंदे की काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए अपने वोट का जो फैसला है वो जहां मर्जी करें, आपको मुकम्मल इख्तियार है। लेकिन ये कि अहलियत को देख कर फैसला करें। चले जाए कि बंदा ये समझे जी कि चूंकि जी ये मेरा पड़ोसी है मैंने इसलिए इसको वोट देना है, ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैंने इसको वोट देना है, ये मेरे गांव का इसलिए मैंने इसको वोट देना है, ये मेरी बिरादरी का इसलिए मैंने इसको वोट देना है। मैं समझता हूँ ये चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। बंदे की काबिलियत और अहलियत है जो, उसको मद्देनजर रख के फैसला करना चाहिए। और मुझे मुझे उम्मीद है कि हमारे जो फ्रेंडली के जितने वोटर्स हैं वो बखूबी जानते हैं वो कैंडिडेट्स का जो चुनाव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो अपनी बसीरत के मुताबिक बेहतरीन चुनाव करेंगे। शाह साहब, ये तो सियासत में चलता रहता है, पर्सनैलिटी क्लैश भी चलता रहता है। बाज़ लोग जो होते हैं वो ख़ुद मेयर देखते हैं कि हमारे रास्ते में शायद शाह साहब नहीं है, या आपको पार्टी के कोलीग भी हो सकते हैं। तो शाह साहब, ये तो होता रहेगा। तो वोट जो जिसने देनी होती है उसने देनी ही देनी है, कोई कितने भी रास्ते रोके, बंदे ने वोट अपनी मर्ज़ी से ही देनी है। काबिलियत पे देनी है या नहीं देनी, ये उनकी स्वाबदीद पे है। शाह साहब, आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा जी जी प्रोसेस जो 18 नवंबर को गुजर जाएगा, तो इससे पहले कोई वहाँ रेडिकल वेंस्टा का कोई मेंबर है आपकी ब्रांडवी में? जी, रणबी में मैंने जैसे बताया कि रेडिकल वेंस्टा की तरफ से सैयद इरफान गिलानी है, जो वो बल्कि स्पिस कैंडिडेट हैं, वो 1 नंबर पे हैं रेडिकल वेंस्टा की तरफ से। नहीं, लेकिन उनका कोई वो पहले हमारे मेंबर है रेडिकल का वहाँ? जी, रेडिकल का इस वक्त बतौर मेंबर इस वक्त कोई मेंबर नहीं है उनका कुमून में। उसकी वजह ये है कि उनकी टिकट पर हमारी एक तुर्की खातून है, वो कामयाब हुई थी रेडिकल वेंस्टा की सीट के ऊपर। तो कामयाबी के कुछ अरसे के बाद, तकरीबन मेरा ख्याल है 2 साल के बाद शायद, तकरीबन 2 साल के बाद अगर मुझे सही याद है, और फिर वो कुछ अरसा है जो वो बगैर पार्टी के उज़न फची जिसे कहते हैं आज़ाद रही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी खैस्टम डेमोक्राटा में। तो कुछ अरसा वो उसमें रही हैं। और फिर कुछ अरसा उसमें गुजारने के बाद फिर उन्होंने कस्टम डेमोक्राटा को भी छोड़ दिया था। अब फिर वो आज़ाद हैं, इस वक्त वो मौजूद हैं कमून में, वो मेंबर हैं। लेकिन वो किसी पार्टी की मेंबर नहीं है। लिहाजा आपके सवाल का जवाब ये है कि इस वक्त रेडिकल वेंस्टा का कोई मेंबर फ्रंट कमून में, यानी काउंसलर कोई नहीं मौजूद, कोई नहीं। तो शाह साहब, रेडिकल वेंस्टा आपको कितना सा सियासी तौर पर सोशल डेमोक्रेट को कितना डेंट डाल सकती है? देखें, पिछली मर्तबा जो गुज़श्ता तजर्बा है पिछले पीरियड का, उसमें रेडिकल वेंस्टा को
800 यानी पूरा 800 वोट मिला था। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो उनकी स्विस कैंडिडेट थी जिनका मैंने, उनके पर्सनल वोट बहुत अच्छे थे, बल्कि उनके मुझसे भी ज्यादा वोट थे। उनके 500 गालबन 30 के करीब 526 वोट थे गालबन, अगर मुझे सही याद है, बल 500 प्लस थे। और मुझे ये भी पता है मेरे 473 थे, उनके वोट मुझसे तकरीबन 40-50 वोट उनके मुझसे ज्यादा थे। ये वजह थी कि रेडिकल वेंस्ट्रा को पिछली दफा मिले थे वोट 800 वोट, यानी पार्टी के और पर्सनल मिला के तो उनको 800 वोट मिले थे। तो उसमें जो बड़ा अमल दखल है वो चूंकि खातून है, जो उनके पर्सनल वोट 526 के करीब उनके पर्सनल वोट थे। पिछली दफ़ा जो ब्रॉन्डवी कम्यून में मेंबर जो एक सिटी काउंसिल के लिए वोट चाहिए थे, वो कितने में जी मैंडेट जी, मिल रहा था? तकरीबन जब हम उसको एस्टिमेट करते हैं, उसका जो तरीकाकार है उसके मुताबिक तकरीबन 625 वोट अगर किसी बंदे को पर्सनल वोट मिले, तो वो बगैर किसी भी पार्टी के भी बंदा कामयाब हो सकता है। यानी अगर किसी बंदे को 625 के करीब वोट मिले तो वो इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी अहल है। लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मेरे वोट हैं जो वो 473 थे, तो मुझे जो इससे ऊपर को 200 सवा 200 वोट की जरूरत थी, वो मेरी पार्टी ने मुझे दिया था। तो मैं उस तरह कामयाब हुआ था। तकरीबन 625 के करीब ये एस्टीमेट है, 650 से 700 के दरमियान तकरीबन अगर वोट हूँ तो बंदा इंडिपेंडेंटली कामयाब हो सकता है। तो शाह साहब, हमारी कम्युनिटी का अगर देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी के कितने वोट बनते हैं? हमारी कम्युनिटी के एग्जैक्टली तो फिगर हमारे पास कोई नहीं है, चूंकि ये जो कानूनी तौर पर हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितने लोग हैं हमारे और उनके वोट कितने हैं, चूंकि जो हमारा जीडीपीआर वाला कानून है उसके मुताबिक हम उसको तो नहीं एक्सप्लोर कर सकते। लेकिन एक अंदाजा है कि हमारे पाकिस्तानियों के वोट हैं जो अब चूंकि कुछ लोग यहाँ से गए भी हैं, लेकिन कुछ नए छिल फ्लूट हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो भी काफी आए हैं यहाँ पर। तो एक अंदाजा है कि हमारे 1000 से ज्यादा वोटर हैं जो वो मौजूद हैं पाकिस्तानियों के। ये एक जस्ट एक गेस है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये है कि जो फैमिलीज हैं उनके एतबार से 1000 से वोट हमारा ज्यादा मौजूद है यहाँ पर। तो लेकिन ये है कि उसमें हमारे जो मुझे बताया गया है या कमून की तरफ से जो स्टैटिस्टिक है, उसमें हमारे फॉरनर्स हैं जो हम गैर मुल्की, मिसाल के तौर पे हम जो पाकिस्तानी नयाद लोग हैं, हमारी शरह वोट डालने की बहुत कम है बाकियों की निस्बत, यानी डेनिशों की निस्बत गैर मुल्कियों की शरह है जो वो बुनियादी तौर पे सबसे ज्यादा कम रहती है। और उनमें भी बिलखुसूस हमारी खवातीन है जो वो वोट डालने नहीं जाती। और हमारा जो नौजवान तबका है, 18 से 25 साल वाला जो हमारा तबका है, वो बिल्कुल इस बात से वो लीग लेवल जैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने वोट डाल के क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे वोट का नुकसान होता है। अगर लोग वोट डालें तो तीन तो क्या, यहाँ पर तीन से ज्यादा भी हमारे पाकिस्तानी कैंडिडेट हैं जो वो कामयाब होने के चांसेस हैं। अगर लोग अच्छे तरीके से अपनी जो वोट की रेशो है इसको बेहतर बनाया जाए और लोग वोट डालें, तो तीन लोगों का कामयाब होना कोई हैरान कुन बात नहीं होगी। बड़ा अच्छा है आपने फरमाया। तो अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है, आपके इस वक्त कितने मैंडेट हैं, और क्या गेम्स इतने क्या बताती है, या जो मीनिंग्स बोर्ड वो क्या कहते हैं आपकी पार्टी के मतलब? जी जी, इस वक्त जो सोशल डेमोक्रेट की तरफ से हम लोग, चूंकि एक तो ये याद रखिए कि ब्रंडवी कम्यून में टोटल 19 काउंसलर्स हैं हम, जिनमें मेयर और डिप्टी मेयर भी शामिल हैं। 19 काउंसलर हैं जो वो हैं, उनमें से 11 हैं जो वो हम सोशल डेमोक्रेट की तरफ से हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसको शायद जो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है उसमें शायद जो हमारी पोजीशन है पार्टी की, वो थोड़ी इस दफ़ा कमज़ोर जा रही है शायद। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसको कहना कि कैसी सूरत हाल उल फॉल होगी, इसका इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन मुझे अंदाजा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कम से कम 10 लोग हैं जो 19 में से 10 जरूर कामयाब। मतलब मेयर आपका अगला आपका मैं सोशल डेमोक्रेट का ही होगा लगता है, सियासी लिहाज जी, से? मैं मुझे 99% यकीन है कि हमारा मेयर, अगला मेयर है जो वो सोशल डेमोक्रेट की तरफ से ही होगा। और उसकी एक और भी आपको यहाँ पर इत्तला देता जाऊं कि हमारे
सोशल डेमोक्रेट का जो इंतहाबी इत्तेहाद है वो एसएफ के साथ हो चुका है। लिहाजा एसएफ और सोशल डेमोक्रेट हैं जो वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, जिस तरह बाकी पार्टियां भी हैं वो भी आपस में इत्तेहाद बना रही हैं। तो सोशल डेमोक्रेट के साथ एसएफ ने सोशल डेमोक्रेट के साथ इत्तेहाद बनाया है। एसएफ के कितने मेंबर हैं इस वक्त वहाँ? इस वक्त एसएफ के सिर्फ एक एक मेंबर मौजूद है। एसएफ का एक मेंबर मौजूद है। शाह साहब चलें, जी ये तो साथ साथ चलता रहेगा, आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, मुआहदे भी हो सकते हैं। शाह साहब रीजन का भी तो कोई हमारा उम्मीदवार जो है वो काफ़ी दूर हैं, 2-3 उम्मीदवार हैं रीजन के, वो चलता जी रहेगा जी इलेक्शन। लेकिन अगर अगर आपसे मैं यहाँ का सियासी सवाल पूछूं, एज जी ए शहरी आपसे पूछूं कि ये जो फ्री ग्रोने ने कोपनहेगन में इताद किया है, सिकंदर सदीक उसके फोरमैन है पार्टी के, ये जो छोटी जी जी छोटी पार्टियाँ होती हैं, पार्टी लिस्ट वाली पार्टियाँ होती हैं, इससे कितना जी फ़ायदा होता है? ये इताद उनके लिए कारामद साबित होगा? जी, कोई भी इत्तेहाद हो, वो रीजन में हो या कम्यून में हो, यकीनन फ़ायदेमंद होता है और इत्तेहाद बनाए ही फ़ायदे के लिए जाता है। वरना तो अकेले-अकेले इलेक्शन लड़ने से आप उसका आपके चूँकि इल्म में है कि जो इंतखाबी इत्तेहाद होता है, उसमें फिर पार्टीज़ के सबके वोट हैं, जो वो इकट्ठे किए जाते हैं और इकट्ठे करने के बाद फिर उसको जो भी फ़ॉर्मूला बनाया गया होता है कि कौन सी पार्टी है जो उसको अगर उनके वोट ज्यादा होते हैं तो पहले उनका मेंबर बनता है, फिर जो दूसरे नंबर वाली होती है फिर उसका मेंबर, यानी वो फार्मूले के तहत वो हर पार्टी ने अपने इंतखाबी इताद बनाने का मकसद यही होता है कि जो किसी भी पार्टी को वोट मिलते हैं वो जाया ना हो। अगर किसी पार्टी को मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि दो पार्टियां, एक पार्टी को 1000 वोट मिले और दूसरी पार्टी को 500 वोट, तो जो 500 वाला है वो तो इंडिपेंडेंट मेंबर तो वो बन नहीं सकता। अब ये है कि चूंकि दो पार्टियां 1000 और 500 मिला के 1500 वोट हो जाते हैं, फिर उससे दो दो कैंडिडेट हैं जो वो कामयाब हो सकते हैं। बसूरत दीगर जिनको 1000 मिला है, अगर उनका 700 से उनका अगर फर्ज करें कि उनका एक कैंडिडेट बन गया है तो उनके 300 वोट उनके जाया हो जाएंगे और जो दूसरी पार्टी है उनके 500 जाया हो जाएंगे। तो इस तरह इंतखाबी इत्तेहाद की वजह से दोनों पार्टियों को फायदा हो जाता है कि उन एक के वोट जाया नहीं होते और दोनों को मिलाकर फिर ये है कि बजाय इसके कि एक के वोट जाया हों और दूसरे के भी किसी काम के ना रहें, तो मिलाने की वजह से इंतखाबी इत्तेहाद का फायदा ये होता है कि वोट जाया नहीं होते और उससे से ज्यादा कैंडिडेट हैं जो बनने के इम्कानात होते हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल शाह साहब आप क्या समझते हैं कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं डेनमार्क में बसती हैं, क्या सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है वो पर्सनैलिटी क्लैश जो है वो पाकिस्तानी बरदरी में है या दूसरी बरदरियों में है? ऐसे ये अलमिया है जो ये बदकिस्मती से हमारे मुसलमानों में देखने में ज्यादा आता है, क्योंकि डैनिश हैं जो उनमें इस तरह के जो है वो उनकी बर्दाश्त है जो शायद हमसे ज्यादा है। लेकिन इस तरह के जो पर्सनैलिटी क्लैश है जो कि जी के भाई, और जिसे पंजाबी में कहते हैं जी कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, भाई मैं तो बनता हूँ या नहीं बनता, मैं दूसरे के लिए टांग जरूर अड़ाऊं। तो इस तरह के मामलात हैं जो ये हमारी जो गैर मुल्की कम्युनिटीज हैं उनमें यानी ज्यादा नजर आते हैं अगर उसको कंपेयर किया जाए डैनिश, चूंकि उनको इस बात से कोई परवाह नहीं होती। हम समझते हैं जी कि मैं बनूं या ना बनूं दूसरे को नहीं बनना चाहिए। इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, पर्सनैलिटी क्लैश जिसको आपने कहा, ये हमारे लोगों में उनकी निस्बत ज्यादा नजर आते हैं। और मैं नहीं समझता कि शायद ये इस तरह की हमारे मुआशरे के लिए ये कोई फायदा मंद चीज है। इससे नुकसान तो हो सकता है, शायद इससे फायदा कोई नहीं होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों में नहीं, ये मेरा ख्याल है जो बाकी हमारे बहन भाई हैं, तुर्की हैं या इस तरह के बाकी जो अकवाम है, शायद उनमें भी थोड़ा बहुत नजर जरूर आता है। नज़र ज़रूर आता है। शाह साहब आखिर में आपके पास 2-4 मिनट हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग आप सोचें तो लोग सोच कर कहें कि हम शाह साहब को क्यों वोट दें? जी, मैं अपने आप को, हर बंदे को हक हासिल है कि वो मुझसे सवाल पूछे और जिसके ज़हन में जो सवाल है वो मुझसे बजाय इसके कि वो आपके तवज्जुह से सिर्फ रेडियो के हवाले से पूछे। मैं अवेलेबल हूँ, मैं ब्रॉडबी में रहता हूँ और अक्सरियत है जो लोगों की वो मुझे जानते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि अगर किसी का भी कोई सवाल है तो डायरेक्टली मुझसे पूछें, जहाँ मर्जी पूछें। और उसके बाद जो दूसरा सवाल है जी कि लोग मुझे वोट क्यों दें, तो मेरा 12 साल ट्रैक रिकॉर्ड है जो लोगों के सामने है।
آپ نے خود بتا دیا ہے کہ میری اویلیبلٹی ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، اور چونکہ میں پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ میں ہر جگہ پر موجود ہوں، اور یہی میری ذمہ داری ہے۔ البتہ میں ایک چیز جو سر عام یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ میں اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک جس بندے نے مجھ سے رابطہ کیا اپنی کسی پرابلم کے بارے میں، تو الحمدللہ میں نے اس کی بھرپور کوشش کرنے، اس کا کام کروانے کی، اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس کے مقدر ہے کہ اس کا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور میں نے اس کی بات نہیں سنی یا میں نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک یہی چیز کافی ہے کہ میں لوگوں کے لیے موجود ہوں، جس بندے کو ضرورت ہوتی ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اپنی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ آگے اس کی قسمت ہے، اس کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، بطور لطیفہ سمجھ لیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو مکان کی ضرورت تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے جی کہ مجھے مکان ہے جو وہ لے کے دیں۔ آپ کمون میں ہوتے ہیں تو کم از کم آپ کا یہ تو فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ مکان لے کے دیں۔ تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی کہ قانونی طریقہ ہے جو، اس کے مطابق یہ طریقہ ہے، تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کو مکان لے کے دوں، لیکن میں آپ کو گائیڈ لائن دے سکتا ہوں، آپ کی میٹنگ کروا سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں کسی کو، لیکن میرے اختیار میں نہیں۔ تو ان کا بڑا برجستہ جواب تھا، انہوں نے کہا شاہ جی پھر تہاڈا فائدہ کیا ہویا قانون دے وچ، کہ اگر آپ مجھے مکان بھی نہیں لے کے دے سکتے تو پھر آپ کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں جو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں الحمدللہ جس نے مجھ سے رابطہ کیا میں بھرپور کوشش کرتا ہوں اپنا فرض سمجھ، کسی نے مجھے ووٹ دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا، ریگارڈلیس ووٹ کے، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ مجھ تک پہنچے میں اس کی بات کو لے کر آگے چلوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، لوگوں کے لیے مشکلات بنانے والا نہ بنائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، سامنے موجود ہے، اور اس کے باوجود جس کا جی چاہتا ہے، جو مجھے بہتر سمجھتے ہیں وہ مجھے ووٹ دیں، اور جو کسی اور کو بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کو ووٹ دیں۔ لیکن میرا ایک ہی پیرامیٹر ہے جو وہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیرامیٹر یہ رکھیں کہ ہر بندے کی قابلیت کو جانچا جائے، اس کی اہلیت کے مطابق اس کو ووٹ دیا جائے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ رائے صاحب، جزاک اللہ۔ تمام ناظرین، یہ تھے سید اعجاز حسین بخاری شاہ صاحب، جن کی باتیں آپ سن رہے تھے۔ براہ راست پروگرام تھا، لائیو پروگرام تھا، ہم نے بالکل ٹیلی فون لائنیں اوپن رکھی ہوئی تھی، کسی نے سوال کرنا، زبانی ہم سے بہت سارے سوالات ہوتے رہتے ہیں، اشاروں میں نے بہت سارے سوالات کر دیے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ شاہ صاحب پر کوئی سوال کرے گا، تو کسی نے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا، کسی نے سوال نہیں کیا۔ تو سامعین، اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔